guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are finally back again with another solution video for the bi-weekly contest 172 which was conducted last Saturday on 20th December. So last week I was quite busy and I wasn't able to upload any solution video for both the weekly and bi-weekly contests. So I'll be releasing both of these videos within the next few days. So yeah, and in this video we'll be basically covering the solutions to all the four problems in bi-weekly contest 172. We'll discuss the difficulty of overall contest, the difficulty of each problem, as well as the solutions and the and space complexities and everything from tip to top, right? So without wasting time, let's jump to it. Okay, so let's start a discussion on bi-weekly contest 172. So yeah, this was conducted on Saturday last week, December 20, and these were the four problems for of each of the points 4, 4, 5, 6. So it seems that every problem was either a medium or a hard problem. Great. And I think overall this contest, what I would say was that, the first, actually, to be honest, all the four problems were on the medium hard side, to be honest. The first three problems were actually easy. To be honest, the logic which is going to be used in these four problems, it's not that difficult. Okay. It could be like, writing the code would be a problem. But to be honest, the basic core logic for each of the first three problems is not very difficult. The fourth problem is quite fascinating. It's based upon number theory, and when we discuss the solution for the fourth problem, you will actually be surprised that it's so small and elegant solution for the last problem, which seems to be very hard, but it's actually a very easy. It's actually a medium hard problem, not a hard problem. So overall, I would say it was more on the medium side. So I would just say medium. Neither it was easy medium, neither it was medium hard. It was on the exactly it was medium. Okay. So yeah. So without wasting your time, let's jump to the first problem. Okay. So let me just increase the just first. I hope this is now okay. Still visible. Let me just increase the size. Okay, great. So now let's go to the problem. The first problem was, I think this was the first problem, right? Yep. Okay. Minimum number of operations to have distinct elements. Great. Question के language से ही पता लग जाता है कि question में क्या पूछने वाले हैं. Let's read the problem. You are given an integer array nums. In one operation, you remove the first three elements of the current array. Great. If there are fewer than three elements remaining, all remaining elements must be removed. So what do you do in any one operation? आप जो array के starting के three elements हैं उनको हटा देते हो. So basically you remove three elements from the prefix of the array every time. And let's say if you have lesser number of elements present, basically अगर आपके पास 3 से कम elements है, मान लो 2 या 1 element बचा है, so in one operation you will remove all of them. Okay. Now you have to repeat this operation until the array is empty or it contains no duplicate values, right? या तो हमारा array खाली हो जाए या तो duplicate values एक भी duplicate value ना हो. Return an integer denoting the number of operations required. Simple. Okay, बहुत ही simple language. Let's read the first test case. Like we have 383 658. We can see कि 3 के बाद 3 यहाँ पर आया है, ये duplicate है, and 8 के बाद एक ये duplicate आया है. अच्छा भैया समझो, अगर मैं इन first 3 elements को हटा दूं, तो जो मेरे पास last 3 elements बचेंगे वो सारे के सारे unique हैं, right? अब देखो, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, हम इन दोनों को भी हटा सकते थे. टू बी ऑनेस्ट, हम इन दोनों को भी हटा सकते थे, राइट? नाउ द पॉइंट इज, अगर हम इन दोनों को हटाते तब भी हमारे पास फोर डिस्टिंक्ट यूनिक एलिमेंट्स बचते हैं. बट द प्रॉब्लम इज एवरी टाइम वी परफॉर्म द ऑपरेशन, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी रिमूव थ्री एलिमेंट्स. सो दिस मीन्स कि अगर यहाँ पर हम दो एलिमेंट पे हटाते तब भी काम चल सकता था, बट हमें तीन ही रिमूव करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ऑपरेशन. ठीक है, अगर हमारे पास तीन से कम एलिमेंट होते, इन दैट केस वी वुड हैव रिमूव टू या वन एलिमेंट, बट हमारे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं तो हमें उन्हें रिमूव करना पड़ेगा, राइट? So in one operation, we can see that the rest of the numbers are all unique. They are no duplicates, right? That is why we require only one operation, right? And in a similar way, we have what 2 comma 2, 2 comma 2, right? So here what we can do is in one operation we can remove all of them, right? हम या तो 3 remove करेंगे, अगर 3 से कम है सारे remove करेंगे, right? So we will remove all of them क्योंकि duplicate values हैं. Then we have 4 3 5 1 2. We can see all the elements are unique. That is why we need no deletion operation, correct? That is why the answer is 0. Let's go to the constraints. The size of the array is in the power of 5 and the values inside the array are also 10 to the power of 5. ग्रेट. तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल लॉजिक, समझो इसमें. ठीक है. अगर मान लो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ओके, लेट्स से वी हैव गॉट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ नंबर. ओके, देन हाउ डू वी डिसाइड कि व्हाट डू वी हैव टू डिलीट? ओके, लेट मी जस्ट शो यू ऑन दिस. ग्रेट. ओके, लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन वन है. लेट्स से वी हैव ए बी सी डी and then we have A again. Okay, so let's say this is our current array. Okay, so how many elements should I delete, or up till what index? I would say let's name them 0 1 2 3 and 4. Now tell me, एक बार सोचो कि up till what index should I remove the elements up to so that my remaining elements are unique. मैं किस एलिमेंट से स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीफिक्स. रिमेंबर हम स्टार्टिंग से एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं, राइट? दैट इज व्हाई कि हमें किस इंडेक्स तक एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहिए सच दैट द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ऑल यूनिक. ठीक है, तो अगर ये समझो, अगर मेरे पास ए आया, ए का ये फर्स्ट अकरेंस है, ग्रेट.
बी का फर्स्ट अकरेंस है, सी का फर्स्ट अकरेंस है, डी का फर्स्ट अकरेंस है, ए का सेकंड अकरेंस आ गया। करेक्ट। अगर मैं यहाँ इस पहले ए के जो ए का जो लास्ट अकरेंस था, अगर मैं वहां तक के एलिमेंट्स को डिलीट कर दूं, देन आई कैन सी दिस बी सी डी ए इज बेसिकली व्हाट, दे आर ऑल आर यूनिक, राइट? दे ऑल आर यूनिक। लेट्स जस्ट फोकस, ठीक है, अभी के लिए लेट्स नॉट फोकस ऑन कि कितने एलिमेंट्स डिलीट कर रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन कि कहां तक के एलिमेंट्स हमें डिलीट कर देने चाहिए, सच दैट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हो वो डुप्लीकेट ना हो, राइट? सो बिफोर काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, लेट्स जस्ट फोकस ऑन एज ऑफ नाउ कि किस इंडेक्स तक के एलिमेंट हमें डिलीट करने पड़ेंगे सच दैट द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ऑल यूनिक, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो मेरे पास कोई कैरेक्टर है ए, ठीक है, मान लो इसका जो लास्ट अकरेंस था वो आई पे था, और इसका भी एक और अकरेंस मुझे जे पे मिला है, करेक्ट? ले वेयर आई इज लेस देन जे, करेक्ट? तो अब ये बताओ, इफ आई वांट कि मेरा जो ए हो वो यूनिक हो, बेसिकली इस एलिमेंट को हमें रखना है, और वी कैन से कि वी डू नॉट वांट डुप्लीकेट, तो हमें कहां तक के एलिमेंट्स डिलीट करने चाहिए? डायरेक्टली इट इज अंडरस्टैंडेबल, ये कॉमन सेंस है कि जीरो से लेके आई तक के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दो, ठीक है? लेट से आई का जो एक कैरेक्टर जो है हमारा ए, इसका जो लास्ट अकरेंस था वो आई इंडेक्स पे आया, और अभी जो करंट करंट इसका एक और अकरेंस आया वो जे इंडेक्स पे आया, सो आई इज लेस देन जे। सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स, कहां तक के मैं कैरेक्टर्स रिमूव कर दूं सच दैट कि ए रिपीट ना हो, ए बिकम्स अ यूनिक कैरेक्टर, कहां तक एलिमेंट्स डिलीट करने चाहिए? सिंपल सी बात है, जहां तक इस कैरेक्टर ए का लास्ट अकरेंस आता है वहां तक के एलिमेंट्स मुझे हटा देने चाहिए, राइट? ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स होंगे उसमें जो ए होगा वो सिर्फ एक ही बार आएगा। सो व्हाट डू यू बेसिकली डू? यू बेसिकली डू दिस थिंग कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारी स्ट्रिंग में, राइट, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इन दिस केस वी हैव नंबर्स, राइट? इन दिस केस वी हैव नंबर्स। सो व्हाट डू वी डू कि जितने भी नंबर्स हैं आप एक मैप यूज कर लो, एंड फॉर ईच नंबर मेंटेन इट्स लास्ट अकरेंस, मेंटेन इट्स लास्ट अकरेंस, ठीक है? एंड योर आंसर वुड बेसिकली बी, you take the maximum among all of them, ओके? सिंपल सी बात है, बहुत सारे नंबर्स होंगे, सबका अकरेंस किसी का बाद में आएगा, किसी का पहले आएगा। व्हाट डू वी वांट कि जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर सारे के सारे यूनिक होने चाहिए। दिस मींस वी नीड टू रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स, करेक्ट? इसीलिए हाउ डू वी एंश्योर कि सारे सारे डुप्लीकेट्स हट चुके हैं? बाय मैक्सिमाइजिंग द इंडेक्स अप टू विच वी नीड टू डू द डिलीशन। और वो कैसे आएगा? आप मैक्सिमाइज करोगे अपने आंसर वैल्यू किसके साथ में? विद द लास्ट अकरेंस, विद द लास्ट अकरेंस ऑफ द नंबर जो भी आपका आया है, ठीक है? इन दिस वे यू विल बेसिकली गेट द इंडेक्स वैल्यू, करेक्ट? यू विल बेसिकली गेट द इंडेक्स वैल्यू, ठीक है? ये तो आपको मिल गया ये तो आपको मिल गया इंडेक्स कि जहां तक आपको डिलीशन करना है। नाउ हाउ डू यू नो द नंबर ऑफ ऑपरेशंस? ये ऑपरेशंस कैसे पता लगाओगे? सिंपल सी बात है, इफ देयर आर आंसर नंबर, लेट्स से बेसिकली लेट्स कॉल दिस एज इंडेक्स, ओके? इट विल बी इजी, लेट्स कॉल इट इंडेक्स इंस्टेड ऑफ आंसर, लेट्स कॉल इट इंडेक्स, ओके? ये आईडीएक्स में ही आंसर है अपना। सो लेट्स से वी हैड आईडीएक्स एलिमेंट्स व्हिच नीड टू बी डिलीटेड, एंड इन ईच ऑपरेशन वी डिलीट 3 एलिमेंट्स। सो हमें कितने ऑपरेशन लगेंगे? सिंपल सी बात है, आईडीएक्स बाय 3, और इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो टेक एज आईडीएक्स प्लस 1 बाय 3, सिंपल, ठीक है? सो दिस बेसिकली आर लॉजिक, कुछ नहीं करना है। यू बेसिकली मेंटेन अ मैप, एंड यू फाइंड फॉर ईच नंबर इट्स लास्ट अकरेंस, एंड यू टेक द मैक्सिमम अमंग ईच फॉर ईच ऑफ द नंबर्स, राइट? फॉर ईच ऑफ द नंबर्स यू टेक द मैक्सिमम इंडेक्स अप टू विच वी नीड टू डू द डिलीशन, जो भी आपका आया डिवाइड बाय 3, एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है? इट्स दैट सिंपल। नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप टू द कोड पार्ट, इट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर। Yep. So here you can see, what do we do? We first declare an answer variable, right? And then we have declared a map, and then we find, see, basically what do we do? Then we find for each nums of 5, we check its last occurrence. Basically, if it's already present in the map, this means that it has occurred previously, right? And what do we do? We maximize the index of occurrence. Because simple सी बात है, in order to ensure all the deletion, in order to ensure that every remaining element is unique, we need to delete up to maximum index which is possible. जहां तक भी duplicate possible होंगे वहां तक सबको delete करना पड़ेगा, right? And that is how you basically take the maximum, and then you also keep on updating your last occurrence, right? आपको last occurrence को भी update करता रहना होगा। And then what do? You find the number of elements. So basically answer denotes what? Answer is basically index. So क्योंकि ये zero base हम लोग zero से start कर रहे हैं, that is why let's say if we are talking about index I, so it means I plus 1 elements, right? So that is why we do an answer plus plus, and then we just check if answer is modulo by 3. Basically if it is divisible by 3, we just send out answer by 3, else we take the answer by 3 plus 1, which is basically in case of remainder, if there is a remainder, we need to seal the operation, right? That is why if it is exactly divisible, then directly return answer by 3, else answer by 3 plus 1 for remainder purposes. Let's say if there are two or one element left, in that case we will have to use a extra operation, right? And that is how you solve the first problem. And the time complexity of the approach is order n. You can directly see order n, space is also order n, right? So not a very difficult problem, very easy to be honest. The logic is very simple. ये last occurrence को देखते रहो, हटाने वहीं तक है, वहां जितना भी maximum index जहां तक हटाना है उसको उठा लो, you will get the number of elements, just divide by 3, get the number of operations, simple, great. Now let's jump to the second question. Okay,
So now let's read the problem. The name of the problem is maximum sum of three numbers divisible by three. Great. क्या ही क्वेश्चन की लैंग्वेज है, मैक्सिमम सम ऑफ थ्री नंबर्स डिविजिबल बाय थ्री। मतलब कि आपको क्या है, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। You are given an integer array nums. ठीक है, great. Your task is to choose exactly three integers from nums such that their sum is divisible by three. Return the maximum possible sum of such a triplet. If no such triplet exists, return zero. तो आपके पास एक array है nums जिसमें सारे integers हैं, ठीक है, और आपको तीन integers चूज करने हैं। बेसिकली a triplet you have to choose, ठीक है। Triplet is basically containing three numbers, so you have to choose three numbers from the array such that the sum of those three numbers is divisible by three. तो तीन नंबर उठाने हैं, उन तीनों नंबर्स का सम जो है वो भी डिविजिबल होना चाहिए किससे, थ्री से। ठीक है, अब ऐसे जितने भी ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं, जितने भी आप तीन नंबर चूज कर सकते हो सच दैट कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो यू हैव टू टेल द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ अ ट्रिपलेट। एक ऐसे ट्रिपलेट की वैल्यू बतानी है जो कि मैक्सिमम होगी अमंग ऑल द पॉसिबल ट्रिपलेट्स, और इनकेस अगर कोई भी ट्रिपलेट एग्जिस्ट नहीं करता है, यू विल रिटर्न जीरो। बहुत सिंपल लैंग्वेज एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको करना कैसे। लेट्स फर्स्ट गो टू द टेस्ट केसेस। पहला टेस्ट केस क्या है, 4231। सो हियर वी कैन सी द आउटपुट इज 9। कैसे? सो अगर हम 4 + 2 + 3 कर दें तो 6 + 3 9, राइट। सो हम देख सकते हैं 9 इज डिविजिबल बाय 3। सो ये एक पॉसिबल सम है, ये पॉसिबल ट्रिपलेट है, इसका सम आता है 9। अनदर पॉसिबल ट्रिपलेट इज व्हाट 231। 231 का सम आता है 6 एंड 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। बट अमंग ऑल दो अमंग बोथ ऑफ दीस ट्रिपलेट्स किसका सम ज्यादा बड़ा है? 9 वाले का। सिंपल सी बात है, आंसर इज 9, राइट। सो आई थिंक दिस मेक सेंस। 215 में देख लो, अगर 215 एक ही ट्रिपलेट बन सकता है और 5 + 2 इज व्हाट 7, 7 + 1 इज 8। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट इज बाय 0, क्योंकि कोई ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं है, दैट इज व्हाई वी रिटर्न 0। Now let's go to the constraints. So the size of the array would be greater than equal to 3. Great. And can be maximum to 10 to the power of 5. Great. Okay. And the nums, basically the integers inside the array, can range from 1 up to 10 to the power of 5. ठीक है, बहुत सिंपल। नाउ अब अंडरस्टैंड, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वुड बी द नाइव अप्रोच। द बेसिक अप्रोच और द नाइव अप्रोच वुड बी बेसिकली रनिंग थ्री लूप्स एंड गेटिंग ऑल द पॉसिबल ट्रिपलेट्स, करेक्ट। जो नाइव अप्रोच कहती है वो ये है कि भाई सिंपल तीन लूप चला दो, नेस्टेड लूप्स, एक के अंदर एक के अंदर एक आईजे के, एंड जनरेट ऑल द पॉसिबल ट्रिपलेट्स एंड चेक कि हर एक ट्रिपलेट का सम निकालो, चेक करो कि वो सम डिविजिबल है 3 से। इफ इट इज डिविजिबल, गेट द मैक्सिमम अमंग ऑल सच ट्रिपलेट्स और आपको आंसर मिल जाएगा। बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट अप्रोच इज ऑर्डर n क्यूब। यू वुड नेवर बी एबल टू डू सच, ये चलेगा ही नहीं। आप n क्यूब तो छोड़ो, n स्क्वायर नहीं चलेगा, n क्यूब तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, उसको तो भूल जाओ। नाउ देन हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कैन वी थिंक ऑफ समथिंग, ठीक है, जो कि हमें इसे लीनियर टाइम में करवा दे या फिर लॉगरिथमिक टाइम में करवा दे। लॉगरिथमिक में तो नहीं हो पाएगा, n log n या फिर ऑर्डर n में करवा दे। इज देयर अ वे? नाउ अंडरस्टैंड, हमें प्रॉब्लम क्या बोला गया। द प्रॉब्लम सेज बेसिकली क्या, कि वी नीड टू फाइंड थ्री एग्जैक्ट इंटीजर्स सच दैट उनका सम जो है वो डिविजिबल बाय थ्री आना चाहिए, ठीक है। एंड मैक्सिमम पॉसिबल सम निकालना है। ग्रेट। नाउ लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नंबर थ्योरी। ठीक है, इस प्रॉब्लम को नंबर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिखते हैं यहां पर क्वेश्चन 2, ठीक है। ये बताओ, लेट से मेरे पास कोई भी नंबर x है। अगर मैं x को 3 से डिवाइड करूं तो जो मेरा रिमाइंडर आने वाला है, रिमाइंडर, रिमाइंडर, देन टेल मी व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस रिमाइंडर। ठीक है, जो लेट से इसको मैं r इक्वल टू x मॉड 3 लिख लेता हूं। व्हाट इज द पॉसिबल डोमेन, डोमेन कह लो या फिर रेंज कह लो, व्हाट इज द रेंज ऑफ r। ठीक है, ये जो हमारा r वैल्यू, r जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। अगर मैं किसी भी नंबर x को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो रिमाइंडर आता है बेसिकली, दैट रिमाइंडर कैन रेंज फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, दैट रिमाइंडर कैन आइदर बी व्हाट 0 1 और 2, करेक्ट। सिंपल सी बात है, सिंपल डिवीजन। इतना आइडिया हो पता ही होगा कि इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय n, लेट से आपके पास कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है एंड डिवाइडेड बाय नंबर m, ठीक है, देन देयर पॉसिबल लिस्ट ऑफ रिमाइंडर्स जो कि आ सकते हैं, दैट रेंजेस फ्रॉम 0 टू m-1, राइट। सो हमारे केस में वो m जो है वो 3 है, दैट इज व्हाई द रिमाइंडर्स रेंज फ्रॉम 0 1 2। इसका मतलब एवरी नंबर हमारे जो एरे में नम्स दिया गया है, ठीक है, वी हैव बीन गिवन एन एरे नम्स, राइट, जहां पर ऐसे a1 a2 ऐसे करते करते an है, ठीक है। इफ वी डिवाइड ऑल ऑफ दीज नंबर्स बाय 3, ओके, इफ वी टेक द मॉडुलस ऑफ द रिमाइंडर विद एवरी नंबर विद रिस्पेक्ट टू 3, हमारा हर एक नंबर जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2, करेक्ट। सो देयर वुड बी नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, जो कि हमारा रिमाइंडर 0 देंगे। Then second is basically all the numbers which on dividing by 3 give a remainder 1, जैसे कि 4. Then we come to all the numbers which on dividing by 3 gives a remainder of 2, like 5. So 3 4 5 example पकड़ लो। 3 divided by 3 gives remainder 0, 4 modulus 3 is 1 and 5 modulus 3 is 2। फिर इसके बाद 6 आता है, 6 modulus 3 दोबारा 0 हो जाता है, right? So what we can do is basically जो हमारे integer array nums given है उसमें हर एक नंबर को we can convert in the form of 0 1 2, right? So basically हमारे पास क्या है, 3 ग्रुप्स बन जाते हैं, राइट। हमारे पास क्या बन जाते हैं, 3 ग्रुप्स बन जाते हैं। और वो 3 ग्रुप्स क्या बनते हैं, वो 3 ग्रुप्स होते हैं 0 1 एंड 2। ऑल द नंबर्स
विच आर डिवाइडिंग बाय 3 गिव अ रिमाइंडर 0, वो पहले ग्रुप में आते हैं. देन वी हैव ऑल द नंबर्स विच आर डिवाइडिंग बाय 3 गिव अ रिमाइंडर 1, वो सेकंड ग्रुप में आते हैं. फिर ऑल द नंबर्स विच कम विच आर डिवाइडिंग बाय 3 गिव अ रिमाइंडर 2, वो आते हैं थर्ड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, बेसिकली 2 वाले ग्रुप में. ठीक है, लेट्स से अब मैं क्या करता हूँ. ओके, मैं करता हूँ, लेट्स पुट ऑल दीज नंबर्स इनटू दीज थ्री ग्रुप्स. लेट्स से मेरे पास A2 ये सारे नंबर्स गिवन है. सो व्हाट आई विल डू फॉर ईच ग्रुप, बेसिकली हर एक ग्रुप में मैं उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने चाहिए उनको पुश करा देता हूँ. करेक्ट. तो लेट्स से यहाँ पर A1 आ गया, A2 यहाँ पर चला गया, यहाँ पर A4 चला गया, यहाँ पर A3 चला गया, यहाँ पर A5 चला गया. ठीक है, फिर यहाँ पर मान लो A6 चला गया, यहाँ A9 चला गया, यहाँ A8 चला गया, यहाँ A7 चला गया. ठीक है, और यहाँ पर मान लो A11 चला गया, A10 चला गया, और यहाँ पर A12 चला गया. लेट्स से वी हैड दीस 12 नंबर्स, राइट. ये हमारा एरे था. एंड व्हेन वी डिवाइडेड एवरीथिंग, ठीक है, जब भी हमने डिवाइड किया तो बेसिकली ये हमारे ग्रुप्स बन के तैयार हो गए, राइट. सो व्हाट डू वी डू, वी हैव बेसिकली 4 ग्रुप्स. ठीक है, जहां पर हर एक का सम जो है, हर एक नंबर का जो रिस्पेक्टिव मॉडुलस है वो हमें पता है, राइट. सो A1 A5 A9 A11, ये वो सारे नंबर है जिनको डिवीजन 0 रिमाइंडर देता है, राइट. एंड सिमिलरली फॉर 1 एंड 2. अब हमारे पास जब ये 3 लिस्टें आ गई हैं, सो व्हाट डू वी नीड टू डू, व्हाट डू वी नीड टू डू. सबसे पहले तो ये तीनों लिस्ट को सॉर्ट कर लो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉर्ट दिस ऑल दीज 3 लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, जो सबसे नंबर बड़े हैं, जो सबसे बड़े नंबर्स हैं बेसिकली, उनको पहले डालना है, राइट. सो लेट्स सॉर्ट दिस ईच ऑफ द लिस्ट, 0 लिस्ट 1 लिस्ट एंड 2 लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, राइट. अभी के लिए जस्ट टू सेव टाइम, लेट्स से कि सॉर्ट करने के बाद मेरा यही ऑर्डर आता है. ओके, just to save time, I am saying sort in descending. Okay, after sorting in descending order, मेरा हर एक जो लिस्ट है वो बेसिकली ऐसा ही दिखता है. ठीक है, जस्ट फॉर सेविंग टाइम. नाउ टेल मी व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर मैक्सिमम पॉसिबल सम. आप कुछ समझो, क्या आपको हर एक ट्रिपलेट बनाने की जरूरत है? आप कुछ सोचो. अच्छा, पहले तो ट्रिपलेट सोचते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं. सिंपल सी बात है, व्हेन यू ऐड 3 नंबर्स विच हैव अ रिमाइंडर 0, द रिजल्टिंग नंबर ऑल्सो गिव्स व्हाट, अ 0. ठीक है, मान लो आपने 3 ऐसे नंबर चूज किए जिनको अगर आप ऐड जिनका रिमाइंडर इंडिविजुअली 3 के साथ 0 आता है. अगर ऐसे 3 नंबर चूज करके उनको ऐड करोगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो भी रिमाइंडर क्या देगी, 0 ही देगी. सो द फर्स्ट पॉसिबल ट्रिपलेट इज बेसिकली A1 A5 A9. करेक्ट. सो द फर्स्ट पॉसिबल ट्रिपलेट इज बेसिकली व्हाट, A1 प्लस A5 प्लस A9. ग्रेट. फिर आता है सेकंड ट्रिपलेट. सेकंड कौन सा ट्रिपलेट पॉसिबल है, व्हाट ट्रिपलेट इज पॉसिबल इन द सेकंड टाइम. अच्छा ये बताओ, इफ आई ऐड अप एनी थ्री नंबर्स विच ईच ऑफ देम गिव अ रिमाइंडर 1. ठीक है, लेट्स से अगर मैं A2 A3 और A8 को उठा लूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, तो टेल मी व्हाट विल हैपन. सिंपल सी बात है, ये तीनों नंबर जो हैं ऑन डिवीजन बाय 3 गिव अ रिमाइंडर 1, तो इसका मतलब इनको अगर मैं ऐड करूं, अगर ऐसा समझो A2 प्लस A3 प्लस A8 का अगर मैं मॉड 3 करूं, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1 + 1 + 1. करेक्ट, होल मॉड 3, क्योंकि इंडिविजुअली तो इनका रिमाइंडर 1 1 आता है. करेक्ट, तो मैंने वही लिख दिया. अच्छा, 1 + 1 + 1 क्या होता है, 3 बार 3 होता है. तो इसका मतलब अगर आप किन्हीं 3 नंबर को ऐड कर दो आपस में जिनका रिमाइंडर इंडिविजुअली 1 1 1 आता है, तो वो भी एक पॉसिबल ट्रिपलेट बनाएगा. इसका मतलब द सेकंड पॉसिबल ट्रिपलेट इज बेसिकली A2 A3 A8. करेक्ट, इट वुड बी A2 A3 प्लस A8. ग्रेट. Then we have the third possible triplet. Simple सी बात है. In a similar way, when we add 3 numbers which on remainder which on division by 3 give a remainder 2. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं A4 A6 और A7 लिख दूं, इनका इंडिविजुअली रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है. एंड 2 × 3 इज व्हाट, 2 × 3 इज 6. इसका मतलब अगर आप किन्हीं ऐसे 3 नंबर्स का सम करो जिनका रिमाइंडर इंडिविजुअली 2 आता है 3 के साथ में, ठीक है, सो सम ऑफ सच 3 नंबर्स वुड आल्सो बी डिविजिबल बाय 3, राइट. तो इसका मतलब हमारा थर्ड पॉसिबल ट्रिपलेट जो बनता है वो है A4 A6 A7, A6 प्लस A7. दिस इज द थर्ड केस. नाउ वी कम टू द फोर्थ केस. ये फोर्थ केस कौन सा है? नाउ टेल मी, इफ आई इंडिविजुअली, अगर मैं बस एक नंबर 0 से उठा लूं, एक नंबर 1 से उठा लूं, और एक नंबर 4 से उठा लूं, तो क्या होगा? एक नंबर 2 से उठा लो बेसिकली. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस. इफ आई पिक अप वन नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द लिस्ट. सो पहले लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, A1 है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि सॉर्ट ऑर्डर में है. ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, पहली लिस्ट से A1 उठा लेते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा है. दूसरी लिस्ट से A2 उठा लेते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा है. और तीसरी लिस्ट से A4 उठा लेते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा है. नाउ इफ आई डिवाइड बाय 3, इसको मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, 0, क्योंकि A1 का इंडिविजुअली मॉड 0 है, A2 का मॉड 1 है, और A4 का मॉड 2 है. तो ये क्या है, 0 + 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है. दिस मीन्स इफ यू एड अप 3 नंबर्स सच दैट एवरी अदर
अल्टरनेटिव नंबर एज बेसिकली अ रिमेनर डिफरेंट फ्रॉम अदर, लाइक 0 1 2 आ गया, राइट? तो ये भी एक पॉसिबल ट्रिपलेट बनाता है, करेक्ट? सो दिस मीन्स आर लास्ट पेयर, आर लास्ट एंड द फाइनल केसेस बेसिकली A2 A1 एंड A4, A1 प्लस A2 प्लस A4, एंड आपको बस यू हैव टू फाइंड जस्ट द मैक्सिमम अमंग ऑल ऑफ दीज फोर, बस आपको और कुछ नहीं करना है। याद रखो हमने एक बहुत इंटेलिजेंट काम किया। सबसे पहले हमने क्या किया, रिमाइंडर की मदद से हर एक नंबर को उसकी पर्टिकुलर लिस्ट में डाल दिया कि वो कौन से रिमाइंडर को बिलोंग करता है, राइट? एंड देन वी सॉर्टेड ईच ऑफ देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, सच दैट कि जो सबसे बड़े नंबर्स हैं वो ऑलरेडी लिस्ट के स्टार्ट में होंगे, करेक्ट? एक बार हमें वो मिल गए। आप चाहें तो सॉर्टिंग असेंडिंग कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, फिर आपको एंडिंग से उठाना पड़ेगा मैक्सिमम एलिमेंट को। मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, दैट इज व्हाई आई यूज द स्टार्टिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर को रिवर्स ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सॉर्ट किया है, राइट? सो आपके पास जब हर एक लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू सॉर्ट हो चुकी हैं, तो आपको बस ये चार जो हैं, ये चार ट्रिपलेट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। एक है जब सारे जीरो हैं, एक है जब सारे वंस हैं, एक है जब सारे टूज हैं, और एक है जब सब में हर एक इंडिविजुअली 0 1 2 है। वी ओनली हैव टू चेक दीज फोर पेयर्स, ठीक है? हम ऑलरेडी क्योंकि सॉर्ट कर चुके हैं, दैट इज व्हाई वी आर इंश्योरिंग कि हर एक ट्रिपलेट का जो सम है वो ऑलरेडी मैक्स है उसके ग्रुप में, राइट? तो अगर आप कोई लेट्स से A1 A5 A4 की जगह पर, अगर A5 सॉरी A1 A5 A9 की जगह पर अगर आप कल को A5 A9 A11 करोगे, तो सिंपल सी बात है, उसका सम जो होगा वो A1 A5 A9 से कम ही आएगा, राइट? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉर्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? सो यू ओनली नीड टू चेक दीज ओनली दीज फोर पेयर्स एंड योर क्वेश्चन विल बी डन। सो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल क्या, एक बेसिकली इफ एल्स और सिंपल नंबर थ्योरी, and this problem is solvable in order n. Now let's go to the code part. कैसे करेंगे इसको, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ 2D लिस्ट एरे, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा था, वी क्रिएट 2D लिस्ट एरे, एंड देन फॉर ईच ऑफ देम वी बेसिकली पुश ईच नंबर इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट, जिसमें इसको जाना चाहिए 0 1 2 में, एंड देन वी सॉर्ट ईच ऑफ द लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट? हर एक लिस्ट को, जीरो लिस्ट को, वन लिस्ट को, टू लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, एंड देन वी फॉलो द ईच ग्रुप, ठीक है? पहले जीरो वाला ग्रुप, ठीक है? कि अगर जीरो का साइज जो है वो 3 से ज्यादा है, सो व्हाट डू वी डू, हम जीरो जो जीरो ग्रुप है उसके टॉप 3 नंबर्स को उठा लेंगे, एंड वी गेट द द सम। सिमिलरली वन लिस्ट के लिए करते हैं, सिमिलरली टू लिस्ट के लिए करते हैं, एंड फाइनली द फोर्थ ट्रिपलेट, जो कि हर एक लिस्ट से एक नंबर उठाना है, राइट? सो हर एक लिस्ट से हमने उसका मैक्सिमम नंबर उठा लिया और उसको प्लस करके देख लिया कि अगर हमारे पास वो ट्रिपलेट पॉसिबल है। एंड फाइनली इफ लेट्स से इफ वी वर नॉट एबल टू इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस, लेट्स से इफ नन ऑफ द कंडीशंस वर ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो पाई, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी जीरो है, तो हमारा जीरो टर्न हो जाएगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर एन, और यू कैन से, आई वुड से नॉट ऑर्डर एन, इट वुड बी एन लॉग एन एक्चुअली, क्योंकि हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा दिया है यहाँ पर, दैट इज व्हाई आई वुड से कि इट्स एन लॉग एन, राइट? इट्स एन लॉग एन, एंड द स्पेस इज ऑर्डर एन, क्योंकि हमने तीन लिस्ट मेंटेन करी है, तो टोटल एन एलिमेंट्स को स्टोर किया, राइट? सो एन लॉग एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर एन। इन दिस वे बेसिकली यू सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम। So quite an interesting problem, but not a very difficult problem, right? Now let's jump to the third problem. Okay, थर्ड प्रॉब्लम बहुत स्वीट प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है? कुछ ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं कि इसमें ये है, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल आइडिया बेस्ड है, कि आपको अगर क्लिक कर गया ना वो, तो तुरंत हो जाएगा, राइट? लेट्स रीड द लैंग्वेज फर्स्ट। सो मैक्सिमम स्कोर आफ्टर बाइनरी स्वैप्स, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n एंड अ बाइनरी स्ट्रिंग s ऑफ द सेम लेंथ। तो आपके पास एक इंटीजर एरे है नम्स जिसका लेंथ n है, और उसी लेंथ की एक स्ट्रिंग भी दी हुई है s, जो कि एक बाइनरी स्ट्रिंग है। व्हाट इज द बाइनरी स्ट्रिंग? इसमें से 0 और 1 होते हैं कैरेक्टर्स में, ग्रेट। इनिशियली योर स्कोर इज 0, each index I where s of I is 1 contributes nums of I to the score। So basically आपके पास जो स्ट्रिंग है उसमें जहां जहां पर 1 है, उसके corresponding जो भी इंडेक्स होता है नम्स में, वो आपके स्कोर में ऐड हो जाता है, राइट? सो लेट्स से अगर s of I 1 है, या फिर लेट्स से s of 1, ठीक है, वन फर्स्ट इंडेक्स पे अगर 1 है, तो इसका मतलब आपके स्कोर में nums of 1 ऐड हो जाएगा, राइट? नाउ व्हाट वी कैन डू इज, यू मे परफॉर्म एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग जीरो, चाहे तो आप करो, चाहे तो आप ना भी करो, चलेगा, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है? इन वन ऑपरेशन you may choose an index I such that I is greater than equal to 0 and less than n minus 1, less than n minus 1, where s of I is 0 and s of I plus 1 is 1, and swap these two characters। so basically आप ऑपरेशन आपका किस टाइप का है, you have to choose an index I such that उस इंडेक्स पे 0 हो और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे 1 होना चाहिए। जो हमारा बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसमें आप जो भी इंडेक्स चूज करते हो, उस इंडेक्स पे 0 होना चाहिए और उसके नेक्स्ट इंडेक्स में 1 होना चाहिए, right? And what you do, you basically swap both these characters, right? You basically swap, okay, and now you basically at the end you have to return an integer denoting the maximum possible score you can achieve, ठीक है? तो आई होप ऑपरेशन क्लियर हो गया। क्या करना है, यू बेसिकली पिक अप एन इंडेक्स जहां पर 0 होना चाहिए, उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे i+1 पे 1 होना चाहिए, एंड यू स्वैप देम। तो बेसिकली s ऑफ i 1 हो जाएगा और s ऑफ i+1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, एंड एट द एंड जब आप ये ऑपरेशन कर लोगे तो आपकी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है? आपको फाइनल स्ट्रिंग ऐसी बनानी है सच दैट यू आर एबल टू अचीव मैक्सिमम स्कोर, एंड एट द एंड यू हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर। आपको वो स्कोर रिटर्न करना है, आपको वो स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करनी है, आपको वो स्कोर रिटर्न करना है जो कि आप मैक्सिमम पॉसिबल बना सकते हो। लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस।
पहला टेस्ट केस क्या है? 2 1 5 2 3। ग्रेट। अच्छा, देखो मैं अब डिस्कशन करने से पहले ना कि आपको लॉजिक पूरा ही बता दूं, लेट्स ट्राई टू बिल्ड योर इंट्यूशन, राइट? एट द एंड द गोल ऑफ दिस वीडियो सोल्यूशन इज बेसिकली टू स्पार्क योर थिंकिंग एबिलिटीज, राइट? कि आप खुद एक बार सोचो, ठीक है? पहले ये बात सोचो कि अगर मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर बताना है, तो सिंपल सी बात है, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं इस एरे में, हमें उन्हें ऐड अप करना होगा। सिंपल सी बात है, पहले तो ये समझो कि जितने वन होंगे हमारे इस एस वाले स्ट्रिंग में, हम उतने ही बस नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, राइट? लेट्स से हमारे स्ट्रिंग में 3 वंस थे, तो इसका मतलब हमें 3 नंबर्स को ऐड करना है। हमारा जो स्कोर, फाइनल स्कोर बनेगा, वो किन्हीं भी 3 नंबर्स को ऐड करके बनेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर मान लो एक भी वन ना हो, इन दैट केस वी वुड सम नथिंग, वी वोंट बी एबल टू सम अप एनी वैल्यू, ठीक है? ये तो पहली ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है? सेकंड ऑब्जर्वेशन आपका एक्चुअली कॉमन सेंस है। एंड व्हाट इज दैट कॉमन सेंस? कि सिंस वी नीड टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर, सो सिंपल सी बात है, वी शुड ट्राई टू पिक अप द मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सी बात है, हमारे एरे में अगर हमें मैक्सिमम स्कोर चाहिए अपने एंड में, तो जहां जहां पर भी मैक्सिमम वैल्यूज प्रेजेंट है हमारे एरे की, बेसिकली द बिगेस्ट वैल्यूज, वहां वहां पे हम किसी तरीके से वन अगर पहुंचा दें, तो हम उनको समअप कर देंगे एंड में, और उनको समअप कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम स्कोर अपने यहाँ बन जाएगा, करेक्ट? सो कॉमन सेंस की बात हो गई यहाँ पर कि अगर हम वन को मूव करा के जितने भी वंस हैं उनको इस तरीके से प्लेस कर दें कि वो उन इंडेक्स पे हो जो कि डिनोट्स द बिगेस्ट वैल्यूज इन द एरे, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एरे में पकड़ते हैं 2 1 5 2 3, अगर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5 है, उसके बाद कौन सी है? 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, राइट? तो ये हमारा ऑर्डर है। तो इसका मतलब है इफ यू नीड टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर, ठीक है, तो व्हाट वी शुड ट्राई, फर्स्ट वी शुड ट्राई कि हम किसी तरीके से जो 5 है हमारा, वहां पर किसी वन को प्लेस कर दें। अगर 5 पे पहले से 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जयराम जी, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेट्स से इफ देयर इज नो वन, तो हमको ट्राई करना पड़ेगा कि हम कोई वन को यहाँ पर बैठा दें, किसी तरीके से 5 की इंडेक्स पे कोई वन आ जाए। अगर वन आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, तब हम उस वैल्यू को ऐड कर पाएंगे, करेक्ट? सिंपल। ग्रेट, नाउ लेट्स कंप्लीट द टेस्ट केस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो 2 1 5 2 3 है, और हमारा जो एस है वो है 0 1 0 1 0। तो वी कैन सी हमारे 5 पे ऑलरेडी 0 है, राइट? और फिर क्या है हमारा, वन हमारा कहाँ पर है? जो इनिशियल स्कोर होगा वो हमारा कितना होगा? वो होगा 1 + 2 3 आ रहा है, राइट? जो कि काफी कम है। अगर सिंपल सी बात है, अगर जो हमारा ऑपरेशन है वो किस टाइप का है, पहले ये भी देखो। हमारा ऑपरेशन क्या करता है, अगर हमारा एस ऑफ आई 0 है और एस ऑफ आई प्लस वन 1 है, तो क्या होता है? उनको स्वैप कर देता है। इसका मतलब द टाइप ऑफ ऑपरेशन वी हैव ऑलवेज मूव द कैरेक्टर वन टू द लेफ्ट, ठीक है? जिस टाइप का ऑपरेशन हमको दिया गया है इस क्वेश्चन में, दैट ऑलवेज मूव्स द कैरेक्टर वन टू द लेफ्ट, वो कभी भी राइट पे नहीं भेजता है। याद रखो क्या होता है, आई पे 0 होना चाहिए, आई प्लस वन पे 1 होना चाहिए, और उन कैरेक्टर्स को स्वैप कर दोगे। जब स्वैप करोगे तो तुम्हारा आई पे 1 आ जाएगा और आई प्लस वन पे 0 आ जाएगा। दिस मीन्स वेन एवर यू अप्लाई द ऑपरेशन ऑन एनी सच इंडेक्स, योर कैरेक्टर वन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब आपका जो वन है, आप कभी भी किसी भी वन को उसके राइट पे नहीं भेज पाओगे, राइट? लेट से हमारे पास कोई इंडेक्स आई है जहां पर 1 है, इसका मतलब व्हाट आर द पॉइंट्स, और बेसिकली आई कैन से व्हाट आर द इंडेक्सेस वेयर यू कैन सेंड दिस 1 टू, कहां कहां पर भेज सकते हो? यू कैन ओनली सेंड इट इन द रेंज 0 to i - 1, करेक्ट? अगर आपके पास कोई इंडेक्स है जहां पर 1 है, आई मान लो आई है इंडेक्स, सो यू कैन ओनली मूव दिस वन टू इंडेक्सेस इन द रेंज फ्रॉम 0 to i - 1। आप कभी भी इस वन को उसके राइट में मूव नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ऑपरेशंस। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि फॉर एनी वैल्यू, अगर उसके राइट पे अगर 1 नहीं है, तो वी वुड नेवर बी एबल टू ऐड दैट वैल्यू अनटिल अनलेस कि उस इंडेक्स पे खुद ही बनो, ठीक है? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं इसको लिख के बताता हूं, सो दैट विल मेक मोर सेंस टू एवरीवन। ओके, लेट्स राइट क्वेश्चन 3। लेट्स राइट क्वेश्चन 3। ओके, सो लेट्स से वी हैव नम्स ऑफ आई, लेट्स से वी आर एट इंडेक्स आई, ठीक है? और यहाँ पर एस ऑफ आई जो है वो हमारा 0 है, ठीक है? सो बेसिकली हमारे पास इंडेक्स रेंजेस क्या है, ठीक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू वांट टू ऐड दिस नम्स ऑफ आई टू स्कोर, if you want to add this nums of I to the final score value given कि आपका s of I initially 0 है, ठीक है? then there should be at least one एक वन तो होना चाहिए on the right side, there should be at least one character on its right, or you can say in basically the range from I plus 1 to n - 1, ठीक है? ये समझो। ये बताओ, जो हमारा नेचर ऑफ ऑपरेशन है वो क्या करता है? वो हमेशा वन को लेफ्ट की तरफ मूव करवाता है। इसका मतलब इफ एट एनी इंडेक्स हमारे जहां पर 0 है, एंड इफ वी वांट टू ऐड दैट नम्स ऑफ आई टू द फाइनल स्कोर, ठीक है, तो उसके राइट पे एक वन होना चाहिए। अगर उसके राइट पे सारे 0 0 भरे हुए हैं, तो हम कभी भी उस वैल्यू को, नम्स ऑफ आई को अपने फाइनल स्कोर में ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ ऑपरेशन ऐसा है कि वन हमेशा लेफ्ट की तरह मूव होता है, करेक्ट? दैट इज बेसिकली द कोर लॉजिक और द हिंट है। तो हमें क्या पता लगा? सबसे पहले तो वन कैनॉट मूव टुवर्ड्स राइट, ठीक है? वन कैरेक्टर ऑलवेज मूव्स लेफ्ट,
ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? इफ यू वांट टू ऐड नम्स ऑफ आई टू स्कोर, नम्स ऑफ आई टू स्कोर, आइदर एस ऑफ आई शुड बी वन, ठीक है, या तो एस ऑफ आई वन हो, ठीक है, और और देयर देयर शुड बी एट लीस्ट वन इंडेक्स जे सच दैट एस ऑफ जे इज वन, और जो हमारा जे है, दैट जे शुड रेंज फ्रॉम व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन, यानी कि उसके राइट पे होना चाहिए। दीज आर बेसिकली द टू कंडीशंस विच वी नीड टू फुलफिल। पहला क्या, हमारा जो वन है वो हमेशा लेफ्ट पे मूव करता है, और दूसरा क्या, अगर हमें किसी नम्स ऑफ आई को फाइनल स्कोर में ऐड करवाना है जबरदस्ती, देन आइदर एस ऑफ आई वहां पर ऑलरेडी वन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकेस अगर वन नहीं है तो उस इंडेक्स के राइट पे एटलीस्ट एक वन होना चाहिए, एक वन होना चाहिए। अगर एक भी वन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर उस इंडेक्स के लेफ्ट पे चाहे हजार वन हो, चाहे एक वन हो, चाहे करोड़ वन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके राइट पे कोई वन नहीं है तो हम एड अप नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज बेसिकली द लॉजिक है। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू इज बेसिकली सिंपल सी बात है, since we need to maximize the score, what we can do is we take a max heap, we take a priority queue. What do we take? We take a priority queue, which is basically of type max heap. Max heap में क्या होता है, everything is stored in what, डिसेंडिंग ऑर्डर। जो टॉप वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है, बिगेस्ट वैल्यू होती है, वो टॉप पे रहती है, राइट। सो हमारा भी इस क्वेश्चन में जो काम है वो क्या है, दैट इज बेसिकली टू गेट द टॉप मोस्ट वैल्यू, क्योंकि हमें सबसे बड़ा बड़ा नंबर हमें चाहिए, दैट इज वाई हमारा, तभी हमारा जाके जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा। सो व्हाट डू वी डू इन दिस प्रायोरिटी क्यू और मैक्स हीप, वी पुश ऑल नम्स ऑफ आई एज वेल एज देयर आई, ठीक है। तो बेसिकली हम ये पेयर जो है वो पुश करते हैं, जिसमें उसकी पहली फर्स्ट वैल्यू जो होती है पेयर की वो नम्स ऑफ आई होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो उसका इंडेक्स होती है, ठीक है। तो ये पहले प्रायोरिटी क्यू में हम ऐसे एन पेयर्स को पुश करा देंगे, ठीक है। देन व्हाट डू वी डू, देन दिस इज बेसिकली स्टेप वन, दिस इज बेसिकली स्टेप वन। स्टेप टू में क्या करते हैं, स्टेप टू में फाइंड ऑल इंडेक्सेस, फाइंड ऑल इंडेक्सेस इन एस, जो कि मैं स्ट्रिंग दी हुई थी, वेयर एस ऑफ आई इज वन, ठीक है, एंड इंसर्ट देम, इंसर्ट देम इन अ सेट, ठीक है। आप यहाँ पर मैप भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपकी इच्छा है। आप फ्री नेशन में रहते हो, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, एवरी वन इज फ्री टू टॉक, एवरी वन इज फ्री टू डू एनीथिंग दे वांट। सो एस ऑफ आई वन है तो अब आप वो जो इंडेक्सेस है बेसिकली आपको स्टोर कराने हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली इन स्टेप टू यू हैव टू फाइंड ऑल द इंडेक्सेस इन द स्ट्रिंग एस जो आपको ओरिजिनली गिवन है, वेयर एस ऑफ आई इज वन। एस ऑफ आई इज वन का मतलब जहां जिन जिन इंडेक्सेस पे वन था, ठीक है, क्योंकि याद रखो जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है आप उसी पे तो ऑपरेशन अप्लाई करोगे ना, उसमें जो मूवमेंट होगा वन का वो उसी में होगा। सो दैट इज वाई व्हाट यू डू, यू फाइंड ऑल द इंडेक्सेस वेयर एस ऑफ आई इज वन एंड यू इंसर्ट देम इनटू अ सेट, ठीक है। मेरे केस में मैंने सेट यूज किया था, ओके। नाउ व्हाट डू यू डू, नाउ सिंपल सी बात है, नाउ व्हाट डू यू डू, स्टेप थ्री इज you start picking up pairs from, you start picking pairs from max heap, ठीक है। मैक्स हीप उठाते हो, मैक्स हीप में सिंपल सी बात है टॉप पे जो होता है वो सबसे बड़ा क्या कहते हैं, पेयर होगा, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, बेसिकली इसका नम्स ऑफ आई सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारा जो पेयर उठ के आएगा, ठीक है, उसकी दो वैल्यूज होंगी, लेट्स कॉल देम यू कॉमा आईडीएक्स, ठीक है, यू कॉमा आईडीएक्स, जहां पर यू जो है दैट डिनोट्स नम्स ऑफ आई, ठीक है, एंड दिस आईडीएक्स डिनोट्स आई, ठीक है। तो हम ये पेयर जो है वो उठाएंगे, इसको योर आईडीएक्स बोल दिया, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी डू, ठीक है, व्हाट डू वी डू, हमारे पास जो सेट गिवन था, अभी जो हमने सेट निकाला था जस्ट स्टेप टू में, उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें हर एक इंडेक्स है जहां पर वन है। नाउ व्हाट डिड आई टेल यू, if you wanted to add, if you wanted to add your nums of I to the score, if you wanted to add your nums of I to the final score, then then either s of I should have been 1 or there should have been at least 1 on the right side of that number, right? तो अब क्या करोगे, आपको बेसिकली जो आपका सेट है आपके पास, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एस टी, इसको मान लेते हैं एस टी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस एस टी में ढूंढना है एनी इंडेक्स जो कि आई से बड़ा हो या फिर इक्वल हो, ठीक है। इफ यू आर एबल टू फाइंड एनी इंडेक्स, ठीक है, लेट्स ये आईडीएक्स आपका है, ठीक है। सो लेट्स से आपको कोई भी ऐसा इंडेक्स मिल जाता है विच इज व्हाट, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू नो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू आईडीएक्स, ठीक है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, जो आईडीएक्स है आया है उसका आप लोअर बाउंड निकालो, बेसिकली बाइनरी सर्च, एंड यू ट्राई टू फाइंड कि कोई भी अगर मुझे ऐसा इंडेक्स मिल जाता है जो कि मेरे आईडीएक्स से बड़ा है, राइट, तो इसका मतलब कि उसकी उसके राइट पे एटलीस्ट एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर वन है, सो इट कैन यूज दैट वन, करेक्ट, इट कैन यूज दैट वन। सो व्हाट डू यू डू, यू बेसिकली अप्लाई द ऑपरेशंस इन दिस वे। आप पहले प्रायोरिटी क्यू से अपने मैक्स हीप से नम्स ऑफ आई और इंडेक्स उठाते हो, उसके बाद जो आपके पास सेट आया है एस टी, उसमें फाइंड करते हो कि डू वी हैव एनी इंडेक्स विच लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस करंट इंडेक्स,
ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, मैंने बताया था फॉर एडिंग दैट नंबर्स ऑफ आई टू स्कोर यू नीड एटलीस्ट वन इंडेक्स जो कि उसके राइट तो राइट। सो यू ट्राई टू गेट अ लोअर बाउंड, आई वुड से लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड इज बेसिकली बाइनरी सर्च। ठीक है, आप ये जो सेट है उस पर लोअर बाउंड लगाते हो आईडीएक्स के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है दैट्स ग्रेट। आपको जैसे वो अगर एलिमेंट अगर आपको मिल गया कोई ऐसा इंडेक्स, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली ऐड दैट वैल्यू टू स्कोर। ठीक है, इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड, इन केस आपको जो लोअर बाउंड है उसमें आपको पता लगता है कि जो आपका करंट इंडेक्स है उसके राइट पे कोई भी वन नहीं बचा है। ठीक है, कोई भी वन नहीं है, तो सिंपल सी बात है आप उसको ऐड नहीं कर सकते, चाहे आप जितना ऑपरेशन अप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज बेसिकली द सोल्यूशन, यू विल फाइनली रिटर्न द फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब इसका जरा कोड देख लेते हैं एक बार, कोड विल मेक मोर सेंस। सी, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले प्रायोरिटी को डिक्लेयर किया, एक पेयर बनाया बेसिकली लॉन्ग लॉन्ग टाइप का। ठीक है, वी एंड देन व्हाट डू वी डू, वी इंसर्टेड ऑल द पेयर्स बेसिकली नम्स ऑफ आई कमा आई जैसा मैंने बोला था। देन वी डिक्लेयर अ सेट यूज दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड द पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, और जहां जहां पर भी वन था उस इंडेक्स को हमने यूज में इंसर्ट कर लिया, करेक्ट। देन वी डिक्लेयर आंसर वेरिएबल एंड देन वी स्टार्ट पॉपिंग आउट, क्या, देन वी स्टार्ट पॉपिंग आउट ईच ऑफ द पेयर्स फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू। सिंपल सी बात है, एज आई सेड कि आप कितने नंबर्स एट मैक्स ऐड कर सकते हो अपने फाइनल स्कोर में, जितने आपके स्ट्रिंग में वन होंगे। ठीक है, अगर तीन वन है तो आप तीन ही नंबर ऐड कर सकते हो एट मैक्स, अगर चार नंबर है चार कर सकते हो, अगर एक भी नहीं है तो एक भी ऐड नहीं करोगे, फाइनल आंसर जीरो आ जाएगा। राइट, सो आइदर या तो सारे या तो प्रायोरिटी क्यू खत्म हो जाए, ठीक है, या तो आपका यूज वाला जो एरे है सेट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू से टॉप पे वैल्यू निकाली जो वी थी बेसिकली वैल्यू, एंड देन यू पिक इट अप इट्स इंडेक्स। आफ्टर पिकिंग अप इंडेक्स आप उसका लोअर बाउंड निकालते हो कि इसके राइट में कोई ऐसा बेसिकली इंडेक्स है जहां पर वन है, क्योंकि हमारे यूज में सारे वही इंडेक्स है जहां पर वन है। ठीक है, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू एन, दिस मीन्स कि हमें एक वैलिड इंडेक्स मिल गया है। ठीक है, सो वी ऐड दैट वैल्यू टू आवर आंसर एंड वी इरेज दैट इंडेक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप लगातार एक वन को दो तीन बार थोड़ी यूज कर सकते हो, एक वन या तो एक किसी एक इंडेक्स पे जाएगा ना, 10 जगह थोड़ी जा सकता है। सो दैट इज वाई आफ्टर यू आर एडिंग दैट नंबर्स ऑफ आई टू योर स्कोर यू हैव टू डिलीट दैट वन ऑल्सो। ठीक है, दैट डिलीशन बेसिकली मीन्स कि आपने उस इंडेक्स पे फिक्सेट कर दिया है उस वन को, दैट कि वो वन जो है वो उस इंडेक्स आईडीएक्स पे जाके रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। दैट इज बेसिकली व्हाट डिलीशन मीन्स है। ठीक है, एंड इन दिस वे you would be doing this and finally return the answer. The time complexity of this approach is n log n, as we know n log n है इसकी, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू यूज किया, बाइनरी सर्च भी यूज किया, that is why it's n log n, n पेयर्स है। एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर n, क्योंकि अगेन प्रायोरिटी क्यू में n पेयर्स पुश कराएं, राइट, एंड एज वेल एज हमारे पास सेट भी है उसका भी एट मैक्स मेमोरी ऑर्डर n जाएगा। सो यप, दैट्स द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रॉब्लम, एंड विद दिस वी हैव कवर्ड द फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉन्टेस्ट। सो एज आई सेड कि पहले तीन प्रॉब्लम्स वर एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, यू कैन एक्चुअली सी कि इतना कुछ भयंकर चीज या फिर लॉजिक या फिर कोई एडवांस टेक्निक नहीं लग रही थी। इट वाज जस्ट बेसिक बीएसए। ठीक है, बेसिक मैथ्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इट्स ऑल नंबर थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर दिस वाज ओनली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन पकड़ ली, आपका काम सेट है, नॉट एन इशू, बहुत ही आराम से होगा। ठीक है, इसको टू बी ऑनेस्ट आप और भी बेटर वे से कर सकते हो, ये तो मैंने एक तरीका ऐसे आपको बता दिया। ठीक है, नाउ आई कैन थिंक ऑफ सम अदर टेक्निक एज वेल, कि आप लगातार लेट से यू डायरेक्टली कीप ऑन मेंटेनिंग मैक्सिमम वैल्यू। ओके, लेट से आप अपने प्रायोरिटी क्यू में लगातार ये सारे इंडेक्सेस को पुश कराने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर इज अ वे टू डू दिस। आप कैसे कर सकते हो, यू स्टार्ट अ प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में लगातार अपने वैल्यूज को पुश कराते जाओ, जहां पर भी आपको एक आईडीएक्स वन मिल जाता है तो सिंपल सी बात है, आपके प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, आप उस वन को डायरेक्टली इस इंडेक्स पे ला सकते हो। सो यू पॉप इट अप एंड यू एड इट अप। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ वे, और वहां पर आपका जो सेट वाला बाइनरी सर्च वाला पार्ट है वो भी हट जाएगा, बट स्टिल प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स को पुश करना स्टिल विल टेक लॉग एन टाइम, सो एन लॉग एन तब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस ऑर्डर तब भी रहेगी। ओके, सो या मैं चाहूँ तो उसको कोड भी कर सकता हूँ, बट या आई विल नॉट डू इट बिकॉज उससे थोड़ा टाइम और जाएगा। बट या, सो दिस बेसिकली हाउ यू सॉल्व द फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, कुछ इशू नहीं है, बहुत ही मक्खन तरीके से होगा। राइट, नाउ वी फाइनली मूव टू द फाइनल प्रॉब्लम, द शोडाउन, फाइनल शोडाउन। ग्रेट, इसको खोलते हैं। इसकी दो लैंग्वेज ही भयंकर है। ओके, लैंग्वेज इज द टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम इज लास्ट रिमेनिंग इंटीजर आफ्टर अल्टरनेटिंग डिलीशन ऑपरेशंस। क्या बात है। ओके, इट्स अ हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको जो है पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर n, बहुत बढ़िया। वी राइट द इंटीजर्स फ्रॉम वन टू n इन अ सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास अगर n मान लो 5 दिया हुआ है तो आप 1 2 3 4 5 लिख देते हो। ठीक है, देन अल्टरनेटली अप्लाई द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस अंटिल ओनली वन इंटीजर रिमेन्स, स्टार्टिंग विद ऑपरेशन वन। सो बेसिकली क्या कर सकते हो, पहले इन जो इंटीजर्स है 1 से n उनको लेफ्ट टू राइट लिख देते हो, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देते हो, एंड देन यू अल्टरनेटली अप्लाई द टू ऑपरेशंस व्हिच आर गिवन, और वो भी स्टार्टिंग विद ऑपरेशन वन। तो सबसे पहले आप ऑपरेशन वन करते हो, फिर ऑपरेशन टू करते हो, फिर ऑपरेशन वन करते हो, फिर ऑपरेशन टू करते हो, एंड इन दिस वे यू कीप गोइंग ऑन अंटिल ओनली वन इंटीजर रिमेन्स, अंटिल एक ही वैल्यू बची रहती है। ठीक है, यू हैव टू रिटर्न द लास्ट रिमेनिंग इंटीजर, आपको वो लास्ट इंटीजर बताना है वो क्या होगा। नाउ लेट्स रीड अबाउट द ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट डिलीट एवरी सेकंड नंबर।
ठीक है, अगर लेट से 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में 1 है, तो एवरी सेकंड नंबर इज व्हाट, 2 4 6 8, ये सब जो होंगे वो एवरी सेकंड नंबर होंगे इफ वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, एंड ऑपरेशन टू इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, डिलीट एवरी सेकंड नंबर। लेट्स अगेन टेक, लेट्स से 1 2 3 4 5 है, तो व्हाट इज द यू नो एवरी सेकंड नंबर फ्रॉम यू नो एवरी सेकंड नंबर फ्रॉम राइट, सो बेसिकली इट बी 4 2 ऐसे करके होगा, राइट। अच्छा, ग्रेट, समझ गए। तो पहला ऑपरेशन है, वहां पर स्टार्टिंग जो 1 वाला साइड है या फिर स्टार्टिंग वाला साइड है, वहां से एवरी सेकंड नंबर को डिलीट करना है। और जो ऑपरेशन टू है, वहां पर एवरी सेकंड, वहां पर से बेसिकली राइट साइड से यू हैव टू डिलीट एवरी सेकंड नंबर, और ये डिलीशन करते रहना है जब तक हमारे पास एक इंटीजर ना बचे। ग्रेट, लेट्स गो टू द यू नो द कंस्ट्रेंट्स डायरेक्टली। यहाँ पर मैं टेस्ट केस नहीं दिखाऊंगा, वाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, टेस्ट केस में ही कई काफी हद तक आंसर छुपा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एन इज 10 to the power 15, 10 to the power 15, काफी बड़ी वैल्यू। नाउ अंडरस्टैंड, कल को अगर ये सवाल छोटा होता, लेट्स से द वैल्यू ऑफ एन वुड हैव बीन लाइक 10 to the power 5 और 10 to the power 4, ठीक है, फिर 100 होती, ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे, वी नो। अच्छा, एक बात समझो, एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर एवरी डिलीशन व्हाट इज हैपनिंग, अगर लेट्स से इनिशियली मेरे पास एन नंबर्स थे, तो जब मैं ऑपरेशन 1 अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, आई एम डिलीटिंग एवरी सेकंड नंबर। इसका मतलब एन से मेरे पास n/2 नंबर्स बचते हैं, आधे नंबर्स डिलीट हो जाते हैं, करेक्ट, सिंस वी आर डिलीटिंग एवरी सेकंड नंबर। सो हर एक ऑपरेशन के बाद मेरे नंबर जो होते हैं वो हाफ हाफ होते चले जाते हैं। लेट्स से इनिशियली n थे, ऑपरेशन 1 के बाद इट विल बी n/2, आफ्टर ऑपरेशन 2 इट विल बी n/4, देन अगेन ऑपरेशन 1 n/8, फिर अगेन ऑपरेशन 2 n/16। सो यू कैन सी एवरी टाइम द अमाउंट ऑफ इंटीजर्स दैट वी आर लेफ्ट विद इज बेसिकली बिकमिंग हाफ एंड हाफ एंड हाफ। अब ये बताओ, अगर मेरे पास अगर n नंबर्स हैं और मुझे आखिरी में एक इंटीजर तक ले जाना है, तो मुझे कितने स्टेप लगेंगे? सिंपल सी बात है, लॉगिन लगेंगे। हर बार हाफ हो रहा है तो लॉगिन स्टेप्स में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज, ठीक है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना वो बहुत छोटे हैं, इट इज जस्ट लॉगिन, राइट। लॉगिन तो बड़े आराम से, यहाँ पर अगर log 2 बेस n लगाओगे 10 to the power 15 में, इट इज लेस देन 64, ठीक है। इसका मतलब 64 से कम ऑपरेशंस में बड़े आराम से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि अगर आप सिमुलेशन करते हो, अगर आप सिमुलेशन वाला टेक्निक यूज करते हो, वहां पर यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगी भाई। व्हेन यू सिमुलेट दिस ऑपरेशन थिंग, दिस होल ऑपरेशन थिंग, तब आप क्या करते हो, आप एरे में वैल्यूज को पुश करा देते हो, राइट। आप हर एक 1 2 3 4 एवरी एलिमेंट इज पुश्ड इन द एरे, और उसके बाद फिर आप लॉग इन टाइम्स ऑपरेशन अप्लाई करते हो, डिलीशन करते हो, ठीक है, हर एक नंबर को स्पेसिफिकली जाके सच में डिलीट करते हो, राइट। सो वहां पर एन लॉग इन आराम से चल जाएगा, राइट, वहां पर एन लॉग इन आराम से चल जाएगा, क्योंकि अगर एन 10 to the power 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली सिमुलेशन कर सकते हो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बट हियर इज अ प्रॉब्लम, जहां पर एन 10 to the power 15 तक जाता है, at this point of time, when the value of n goes up to the power of 15, you cannot use that n log n approach। यहाँ तक कि आप ऑर्डर n भी यूज नहीं कर सकते, you can't use order n even। आप ना उतनी स्पेस यूज कर सकते हो, ना उतना टाइम यूज कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज कि फिर हम कैसे करें। अच्छा, जो सिमुलेशन का लॉजिक था वो सिमिलर ही है, ठीक है, जो लॉजिक है सिमुलेशन का वो सिमिलर ही है। बट नाउ वी विल एक्चुअली बी फोकसिंग ऑन रियल थिंग्स, ठीक है। हमें फोकस किस चीज पे करना चाहिए, लेट मी जस्ट ट्राई टू गिव यू अ सिमुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन 6 या क्वेश्चन 4, let's say I have numbers like 1 2 3 4 5 6 7 and 8, okay। Let's say I apply the first operation 1 जो हम पहले अप्लाई करते हैं, so I will cancel out 2 4 6 and 8, I will be left with 1 3 5 and 7। now when I apply operation 2, when I apply operation 2, okay, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, राइट से स्टार्ट करूंगा, राइट। हमें राइट में बोला गया है, so I will start from here, this point। so every second number would be 5 and 1, so I'll be finally left with 3 and 7। नाउ आई अगेन अप्लाई ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 1 फिर से कहां से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है, करेक्ट। सो डिलीशन ऑफ एवरी सेकंड नंबर, सो ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर 7 है। नाउ वी कैन सी वी आर फाइनली एट विद नंबर 3, सो यही हमारा आंसर है। दिस बेसिकली हाउ थिंग्स गो, राइट। बट द पॉइंट इज, जैसे मैंने कहा कि आप सिमुलेशन पूरी तरीके से नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो कैसे करें। अंडरस्टैंड हाउ द गैप इज चेंजिंग, अंडरस्टैंड हाउ द गैप इज चेंजिंग, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, when we had the original list, when we had the original list 1 2 3 4 5, the difference between each consecutive element was what, it was 1 1 1। after the first operation, after the first operation, the list that we got, it was 1 3 5 7, and the gap between them increased to 2 2 and 2। after another operation, when we did another operation, the gap between the numbers became what, 3 and 7 is 4। so what do you see, what do you see, you basically see कि आपका जो गैप है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का, दैट इज हैविंग अ पैटर्न, राइट। आपको हर एक नंबर को स्पेसिफिकली जाके सिमुलेट करके डिलीट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गेट कि कौन कौन से नंबर्स डिलीट होंगे। हाउ, बिकॉज नाउ यू हैव द व्हाट, यू हैव द स्टार्टिंग नंबर, यू ओनली हैव टू मेंटेन टू थिंग्स, आपको बस दो चीजें मेंटेन करनी है। पहली चीज क्या, द स्टार्टिंग पॉइंट,
ठीक है, अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करो तो आपको लेफ्ट वाला स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, अगर आप राइट से स्टार्ट करो तो आपको राइट वाला स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, राइट। बेसिकली लेफ्ट और राइट दो ये बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल्स आप कह सकते हो, राइट। सो एक लेफ्ट वाला पॉइंट और एक राइट वाला पॉइंट, क्योंकि हम डिलीशन पहले लेफ्ट से राइट करते हैं और फिर राइट से लेफ्ट करते हैं, दैट इज वाई वी नीड टू पॉइंटर्स। ठीक है, और मेन बात, ये दोनों पॉइंटर्स आपस में चेंज भी होते रहते हैं, राइट। हो सकता है कि जो आपका राइट वाला पॉइंटर हो वो पिछले वाले ऑपरेशन में डिलीट हो जाए, हमारे पास एक नया राइट पॉइंटर आ जाएगा। सिमिलरली वाइस वर्सा गोस फॉर द लेफ्ट पॉइंटर। ठीक है, अब समझो अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट लिस्ट का दिया हुआ है और आपको पता है कि अभी जो करंट ऑपरेशन है उसके लिए गैप कितना होना चाहिए, सो कांट वी प्रेडिक्ट कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। वी कैन वी कैन। सिंपल सी बात है, अगर मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट 3 है, सो आई नो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, अगर मान लो और नंबर होते तो ये नंबर्स बचेंगे मेरे तीसरे ऑपरेशन में। मेरे जो सेकंड ऑपरेशन के बाद मेरे क्या नंबर बचेंगे, 3 बचा, गैप कितना था, 4 का था, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर 7 होगा, उसके बाद सिंपल सी बात है गैप 4 है। ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर वुड बी व्हाट, 11, 15, 19, इन दिस वे इट विल कीप गोइंग ऑन। दैट इज व्हाई यू जस्ट ओनली नीड टू लुक एट द गैप कि करंट जो लिस्ट है हमारी, जो करंट ऑपरेशन है, उसमें गैप क्या होना चाहिए, एट द सेम टाइम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, दैट इज बेसिकली लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर, और उसकी मदद से यू विल बी डायरेक्टली एबल टू गेट कि फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो आप एस को है समझो, व्हाट विल यू डू, इनिशियली आपके पास दो पॉइंटर्स होंगे, लेफ्ट 1 के बराबर होगा, राइट जो होगा वो n के बराबर होगा। ठीक है, एंड योर स्टेप इज व्हाट इट इज 1, करेक्ट, स्टेप आपका 1 है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, अब मुझे राइट की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, जो नंबर डिलीट हो जाएंगे उनके बाद उनके ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक है, वी शुड नॉट फोकस ऑन द नंबर्स विच आर गोइंग टू बी डिलीटेड, लेट्स पुश आर फोकस टू द नंबर्स जो कि लेफ्ट होंगे, जो कि बचेंगे। हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है वो नंबर जो कि एंड में बचेंगे, राइट, द नंबर विच फाइनली रिमेन्स, द लास्ट इंटीजर, द लास्ट स्टैंडिंग इंटीजर, राइट। सो दिस मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन द इंटीजर्स विच वुड बी लेफ्ट। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर मेरे पास लेफ्ट, सिंपल सी बात है, ऑपरेशन 1 जो होता है वो लेफ्ट से राइट जाता है, वो लेफ्ट से राइट जाता है, तो सिंपल सी बात है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा लेफ्ट होगा ना। ठीक है, इन डायरेक्शन जो हमारा है, इसको लेट से इसको एल बना देते हैं, इट विल बी इजी, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेट से दिस इज एल, एंड अरे लेट्स कॉल दिस एज आर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑपरेशन 1 में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो इसका जो ये वाली लिस्ट होगी या फिर ये वाला ऑपरेशन होगा, उसके स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी एल। ठीक है, एल से हम इधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे, करेक्ट। तो अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि फाइनल नंबर कौन सा होना चाहिए, फाइनल नंबर कौन सा होना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, आई जस्ट नीड टू नो विच नंबर। ठीक है, और यू कैन डू इनिशियली स्टेप को 2 बना देते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट टेक 1, लेट्स टेक 2, क्योंकि 1 तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, क्या ही मतलब है, 1 का तो हमें पता है। ठीक है, सब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो अगर मेरे पास ये एल है, ठीक है, तो मेरा फाइनल एलिमेंट क्या बचेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, एल प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, या फिर स्टेप इंटू एक्स लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, स्टेप इंटू एक्स, ये कुछ एम आएगा, करेक्ट, ये कुछ एम आएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, अगर मैं एल बेसिकली मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और हर एक नंबर के बीच में जो बेसिकली स्टेप काउंट है वो स्टेप है, सो इफ आई ऐड एल प्लस स्टेप इंटू एक्स, ठीक है, एक्स बेसिकली है कि कितनी बार आपने ऐड किया, यू विल गेट सम फाइनल वैल्यू। ठीक है, नाउ यू नो दिस एम कैनॉट बी व्हाट, कैनॉट बी बिगर देन राइट, करेक्ट। आपका जो एम है, सिंपल सी बात है, राइट से बड़ा थोड़ी हो सकता है, आपका जो राइट बाउंड्री है उससे बड़ा नहीं हो सकता है, राइट। सो आपको बेसिकली एक्स ही तो निकालना है, आपको एक्स निकालना है, आपको एल पता है, आपको स्टेप पता है, आपको आर भी पता है, आपको एक्स निकालना है। आपको जैसे ही एक्स मिल जाएगा तो आपको अपना नया राइट पॉइंट भी मिल जाएगा, करेक्ट। सो व्हाट डू, यू बेसिकली गेट एक्स आर माइनस एल डिवाइड बाय स्टेप। ठीक है, नाउ ये जो एक्स आएगा, ठीक है, हम इसका फ्लोर वैल्यू लेंगे। ठीक है, सील नहीं लेंगे, सील लोगे तो आप बाहर चले जाओगे, राइट। सील बेसिकली मीन्स की डिवाइड बाय स्टेप प्लस 1। ठीक है, तो आप सील नहीं, आपका फ्लोर वैल्यू लोगे, बिकॉज यू वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू वांट टू रिमेन इन द बाउंड्री, आप आर से बड़े नहीं हो सकते, राइट। सो आप पहले एक्स निकालोगे, जब हम ऑपरेशन 1 की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली टेलिंग अबाउट ऑपरेशन 1। ठीक है, आप पहले अपना एक्स निकालोगे, ठीक है, एंड देन यू अपडेट योर आर एज एल प्लस स्टेप इनटू एक्स, ये आपकी नई वैल्यू होगी, इसको आप आर डैश कह सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन से देन आर बिकम्स आर डैश। ठीक है, दिस इज बेसिकली ऑपरेशन 1। ठीक है, इनिशियली एल और आर जो है आपका 1 और एन है। ठीक है, स्टेप को 2 बना रखा है, सबसे पहले इक्वेशन लिखी, अपना एक्स फाइंड किया। ठीक है, देन आर डैश, यहाँ पर याद रखो मैंने यहाँ पर एक्स की यहाँ पर आर डैश क्यों लिखा है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आर माइनस एल जो है वो डायरेक्टली डिविजिबल हो स्टेप से, राइट। तो दैट इज वाई आर डैश कैन बी लेस देन स्मॉल, कैन बी लेस देन आर, दैट इज वाई आर डैश विल बी एल प्लस स्टेप इनटू एक्स, क्योंकि हम फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं डिवीजन की, राइट। इस तरीके से हमारा आर अपडेट होगा। इन ऑपरेशन टू व्हाट डू वी डू, इन ऑपरेशन टू हमारा उल्टा होता है। इन ऑपरेशन टू व्हाट डू वी डू, we do r minus step into x। ठीक है, दिस शुड बी बिगर देन एल,
करेक्ट। जैसे हमने एल के लिए किया था वैसे आर के लिए भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम डिलीशन जो है वो कहाँ से करते हैं, वी डू फ्रॉम वी डू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। याद है ऑपरेशन टू क्या था, राइट टू लेफ्ट का डिलीशन। So, इसको फिर से रीअरेंज करते हैं, वी कैन राइट दिस एज व्हाट, एक्स इक्वल टू व्हाट, आर माइनस एल प्लस आर माइनस एल डिवाइड बाय स्टेप। ठीक है, तो जो एक्स वाला फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब ये आ गया, अब एल की नई वैल्यू क्या होगी, याद रखो ऑपरेशन टू में एल अपडेट होता है, ऑपरेशन वन में क्या था, आर अपडेट होता है। ठीक है, और ऑपरेशन टू है उसमें लेफ्ट बाउंड्री जो है एल वो अपडेट होती है। सो न्यू एल वुड बिकम व्हाट, आर माइनस स्टेप इनटू एक्स। इसको एल डैश लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, स्टेप इनटू एक्स एंड देन एल बिकम्स एल डैश। दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, आपको बस यही करना है। ठीक है, आपको अल्टरनेटिवली एक एक टर्म में ऑपरेशन वन अप्लाई करना है, यानी कि ये तीन स्टेटमेंट्स चलाने हैं। ठीक है, और अगर ऑपरेशन टू है यानी कि अल्टरनेटिव टर्म में ये ये बचे हुए तीन स्टेप चलाने हैं। राइट, और टू बी ऑनेस्ट ये जो एक्स वाला स्टेप है वो तो कॉमन ही है, तो जो बस अपडेट पार्ट है वही डिफरेंट है। जब आप ऑपरेशन वन चलाओगे तो आपका राइट बाउंड्री अपडेट होगा, जब ऑपरेशन टू चलाओगे तो आपका लेफ्ट बाउंड्री अपडेट होगा। इन दिस वे यू वुड कीप ऑन डूइंग दिस प्रोसेस अंटिल यू हैव यूज्ड ऑल द टर्न्स। ठीक है, ये कब तक होगा, सो व्हाट यू डू, you perform the operations alternatively, perform operations alternatively। ठीक है, अल्टरनेटिवली, और हर एक अल्टरनेटिव ऑपरेशन में क्या होता है, योर साइज डिक्रीज बाय n टू n बाय 2 टू n बाय 4 टू n बाय 16। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे, log 2 बेस n। ठीक है, इसका आप सील ले सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सील ले सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास लॉग एन ऑपरेशन होंगे जो आपको अप्लाई करने हैं, और हर एक अल्टरनेटिव ऑपरेशन में क्या करोगे, लेट से मैं ऑपरेशन जो है उनको वन के हिसाब से ही करता हूँ। सो अगर पहला ऑपरेशन है तो ये ऑपरेशन वन होगा, टू है तो ऑपरेशन टू होगा, थ्री है तो अगेन ऑपरेशन वन होगा, फोर है तो ऑपरेशन टू होगा। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो यू कैन राइट, और आप अपना ऑपरेशन अप्लाई करोगे पैरिटी के हिसाब से कि ये अल्टरनेटिव कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, एंड एवरी टाइम यू डिक्रीज बाय डिवाइड बाय टू। ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको करते जाओगे, जब ऑपरेशन वन की बारी होगी तो ऑपरेशन वन करोगे, ऑपरेशन टू की बारी होगी तो ऑपरेशन टू करोगे, और बस वही तीन स्टेटमेंट चलाने हैं। आफ्टर दिस प्रोसेस गेट्स ओवर, आफ्टर दिस प्रोसेस गेट्स ओवर, आपके पास जो एल और आर की वैल्यू होगी, ठीक है, आपके पास जो एल और आर की वैल्यू होगी, दैट वुड श्योरली बी इक्वल, और यही आपका आंसर भी है। अब चाहे तो स्टार्ट रिटर्न करा दो, चाहे तो एंड रिटर्न करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एट द एंड व्हाट डू यू डू, इन माय केस आई हैव रिटर्न एंड, सो व्हाट यू डू बाय द एंड, जब ये ऑपरेशन खत्म करते हो, जब ये सारे ऑपरेशन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपके पास बस एक इंटीजर बचता है, राइट, फाइनली ओनली हैव वन इंटीजर, एंड दैट इज बेसिकली एल इक्वल टू आर। सो आपका जो रेंज होगा ना, जिस आपने इनिशियली वन से लेके एन पे स्टार्ट किया था, और आप डिक्रीज करते करते लॉग इन ऑपरेशन करते करते आपका एल और आर जो होगा ना, वो फाइनली सेम पॉइंट पे आ जाएगा, और वो सेम पॉइंट ही आपका लास्ट रिमेनिंग इंटीजर है, लास्ट रिमेनिंग इंटीजर है। ठीक है, सो यू कैन आइदर रिटर्न एल और आर, दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू द कोड पार्ट समझने में ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, सो सी व्हाट वी हैव डन, इनिशियली इफ n इज वन, तो सिंपल सी बात है, फॉर n इक्वल टू वन, एक ही इंटीजर ही है तो भाई वही आंसर ही है हमारा। ठीक है, रेस्ट इन अदर केसेस हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट वन है, जो कि हमने बताया था, स्टार्टिंग में स्टार्ट विद वन, एंड इज n, एंड इनिशियल स्टेप इज टू, एंड p इज बेसिकली जीरो। दिस p इज फॉर डिनोटिंग कि हमारा हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, आइदर इट्स ऑपरेशन वन और टू। ठीक है, तो नाउ वी कैन सी द लूप इज व्हाट, वाइल n, एन बेसिकली यहाँ पर वाइल n का मतलब समझ गए होगे, वाइल n इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, व्हाट डू वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द वैल्यू ऑफ x, जैसे कि हमने बताया था, एंड दैट इज व्हाट, r माइनस एल डिवाइड बाय स्टेप। सो इट बेसिकली व्हाट, एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय स्टेप यहाँ पर। ठीक है, देन यू चेक कि हमें ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, नॉट पी बेसिकली यहाँ पर जीरो जो डिनोट करता है, जीरो डिनोट्स ऑपरेशन वन, एंड वन डिनोट्स ऑपरेशन टू, जो मैंने भी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सो व्हाट यू डू, इफ इट्स ऑपरेशन वन तो आप किसको डिनोट करते हो, राइट, तो आप किसको अपडेट करते हो, राइट बाउंड्री को। सो यू कैन सी इट्स अपडेटिंग एंड इक्वल टू स्टार्ट प्लस डिव इनटू स्टेप। इफ इट्स ऑपरेशन टू, तब आप स्टार्ट जो लेफ्ट बाउंड्री है उसको अपडेट करते हो, राइट, सो एंड माइनस डिव इनटू स्टेप। उसके बाद आप पैरिटी को चेंज करते हो, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, ऐसे आपका जो पी है वो चेंज होता जाएगा, तो आपको पता लगता जाएगा कि आपको ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है। एन इज गेटिंग डिवाइड बाय टू, तो दैट इज बाय सिंपल सी बात है, ये लॉग इन टाइम चलेगा, सो एवरी टाइम द लूप रन्स, वो एक ऑपरेशन के बराबर या फिर एक टर्न के बराबर होता है। एंड योर स्टेप, एज आई सेड, आफ्टर ईच डिवीजन, ठीक है, जब भी आप आधे नंबर हटाते हो, द गैप बिटवीन द नंबर्स इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ टू। इनिशियली वन था, फिर टू हुआ, फिर फोर होता है, फिर एट होता है, फिर 16 हो जाता है, दैट इज वाई यू मल्टीप्लाई योर स्टेप बाय टू, एंड फाइनली यू रिटर्न एन। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉग एन, क्योंकि सिंपल सी बात है, और कुछ यूज नहीं किया है, जब तक एन इज डिविजिबल बाय, बेसिकली एन डज नॉट रीचेस जीरो, तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं टू से, सो इट्स लॉग बेस टू एन। ठीक है, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर वन, बिकॉज वी हैवंट यूज्ड एनी मेमोरी एट ऑल, वी ओनली हैव यूज्ड थ्री वेरिएबल्स, वन फॉर टू फॉर पॉइंटर्स एंड वन फॉर द स्टेप काउंट, राइट। सो इन दिस वे यू वुड बी एबल टू सॉल्व द फोर्थ प्रॉब्लम। अब आप खुद बताओ आपको कैसा लगा ये प्रॉब्लम, था ना मजेदार प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, द फोर्थ प्रॉब्लम वाज एक्चुअली वेरी इजी।
मतलब था बहुत सिंपल। नंबर थ्योरी की थोड़ी बहुत नॉलेज आप कह सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट अगर यहाँ पर अगर एन का साइज छोटा होता ना, तो सबने कर लिया होता। सबने कर लिया होता, बड़ी इजीली कर लिया होता, क्योंकि कुछ था ही नहीं। एन उन्होंने बढ़ा रखा सो दैट यू थिंक एंड थिंक मोर। जैसे आपको पता लग गया कि भाई इस प्रॉब्लम में आपको सारे नंबर्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो सिर्फ लिस्ट का स्टार्टिंग मेंटेन करना है और स्टेप काउंट मेंटेन करना है। अगर आप ये दो चीज ऑब्जर्व कर ले गए, आपका प्रॉब्लम सामने एक हलवा है, कुछ नहीं है, खत्म, सिंपल। So this is basically how you solve all the four problems. But still, I would say overall it was a medium contest. अच्छा था, मजेदार था, माइंड ओपनिंग था, ठीक है। So yeah, with this we come to the conclusion or end of the video. So uh, do like the video, like, share, subscribe. Do subscribe. It's my humble request to everyone who sees the video for the first time that you do subscribe and press the bell icon so that you never miss an update from my side. Do share this video with your peers and friends who are who passionately do lead code, or they are preparing for interviews, or they are just giving it for fun. Okay, it can be your competitive programming friends or normal lead code friends or any friends, right? जिसको भी भेज सकते हो, भेजो, शेयर करो, ठीक है। इंक्रीज द कम्युनिटी साइज, जितना ये फैलेगा उतना भी बेटर। देन डू ड्रॉप योर कमेंट्स, ठीक है। लाइक तो पक्का करो यार, जो भी आता है लाइक करो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शो योर सपोर्ट। Do drop your comments. Comment करो कि how did you like the problems? Okay, did you like all the four problems? How many problems were you able to solve? Did you have did you thought of any other approaches कि जिससे आप प्रॉब्लम को कर सकते हो, कुछ बेटर वे हो, कुछ और ऑप्टिमाइज्ड वे हो जो मैंने कवर ना किया हो? गिव योर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि दिस कैन बी इम्प्रूव्ड, डू डू कमेंट। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, डू कमेंट टू अप्रिशिएट इट। ओके, योर कमेंट्स गिव मी अ गिव बूस्ट, give me a boost to make these videos. And also it actually takes a lot of time and energy to in detail explain every solution, right? So that is why your support is very important for this. Okay, and yeah, share, like, subscribe, and comment. That is all. You can also follow me on LinkedIn. The link is in the description. You can also follow the official It's Code Time Insta page. That link is also in the description. Do join our WhatsApp community if you are new to the channel. Do join either the WhatsApp community or the Telegram community. In case the bell the bell icon does not gives you an update about the new video, coming video, then all the new videos are directly posted instantly on both these groups, ठीक है। So you will never miss out. तो उसको join करो तुरंत जाके। Okay, and yeah, show your love and support. With this I think cover हो गया सब कुछ। आई विल मीट अगेन विद द वीकली कॉन्टेस्ट सोल्यूशन वीडियो, जो कि अभी मुझे कवर करना है। मैं अभी पहला वाला पार्ट बना रहा हूँ, सो पार्ट 2 इसके बाद आ जाएगा। एंड टिल देन, दिस अमित शुक्ला साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस, ग्राइंड करते रहो और गर्दा उड़ा दो।